हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका 10 कदम के नए एपिसोड में। आज का टॉपिक है इंट्यूबेशन, जो एंक्लेक्स और डेली प्रैक्टिस के लिए एक की एरिया काफी जरूरी है। हम डिस्कस करेंगे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एयरवे मैनेजमेंट के प्रो टिप्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, a 68-year-old male presents to the emergency department with severe respiratory distress, acute altered mental status and a Glasgow Coma Scale GCS score of 6. His SpO2 is 82% on a non-rebreather mask. Respiratory rate is 40 breaths per minute and shallow, and he exhibits paradoxical abdominal breathing. Despite attempts at non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV), his condition deteriorates. Which of the following is the most compelling indication for immediate endotracheal intubation in this patient? A. Hypoxemia refractory to oxygen therapy. B. High risk of aspiration due to altered mental status. C. Significant respiratory fatigue and impending respiratory arrest. D. Glasgow Coma Scale score of 6. Correct answer C. Explanation: although all options represent reasons for intubation, significant respiratory fatigue and impending respiratory arrest सबसे कंपेलिंग इंडिकेशन है। पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट बहुत हाई है, 40 बीपीएम, और शैलो है, इंडिकेटिंग इनसफिशिएंट टाइडल वॉल्यूम। पैराडॉक्सिकल एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी रेस्पिरेटरी मसल फटीग का क्लासिक साइन है, मतलब डायफ्राम एग्जॉस्ट हो रहा है। इस स्टेज पर पेशेंट अपने एयरवे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और लाइकली कंप्लीट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला जाएगा। ऑप्शन ए रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, पर इस पेशेंट में हाइपोक्सीमिया रेस्पिरेटरी फटीग की वजह से हो रही है। फटीग को एड्रेस करना प्राइमरी है। ऑप्शन बी हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस GCS 6 के साथ 8 प्रेजेंट है, पर इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट से ज्यादा इमीडिएट थ्रेट नहीं है। ऑप्शन डी GCS 6 अपने आप में इंट्यूबेशन का इंडिकेशन है फॉर एयरवे प्रोटेक्शन, पर रेस्पिरेटरी फेलियर का इमीडिएट थ्रेट फैटिग उससे भी ज्यादा अर्जेंट है। पेशेंट की प्राइमरी प्रॉब्लम ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन मेंटेन करने की इनेबिलिटी है ड्यू टू मसल एग्जॉस्शन। क्वेश्चन 2, a nurse is assisting with a rapid sequence intubation RSI of a trauma patient with suspected cervical spine injury. After pre-oxygenation, the physician administers etomidate for induction and succinylcholine for paralysis. The nurse should be prepared to administer which medication immediately after the paralytic to mitigate a potential critical complication in this specific patient population? A. Lidocaine, B. Atropine, C. Rocuronium, D. Fentanyl. Correct answer A. Explanation: trauma patients, especially those with suspected cervical spine injuries, often experience increased intracranial pressure ICP. Succinylcholine, although a rapid acting paralytic, transiently increases ICP. Lidocaine is administered intravenously prior to or immediately after succinylcholine in specific cases like head injury to attenuate the rise in ICP associated with intubation and succinylcholine administration.
इसे पेशेंट को क्रिटिकल न्यूरोलॉजिकल डैमेज से बचाया जा सकता है। ऑप्शन बी, एट्रोपिन चिल्ड्रन में सक्सिनाइल कोलिन इंड्यूस्ड ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए यूज हो सकता है, पर एडल्ट ट्रॉमा पेशेंट्स में प्राइमरी कंसर्न नहीं है। ऑप्शन सी, रोकुरोनियम एक ऑल्टरनेटिव पैरालिटिक है जब सक्सिनाइल कोलिन कॉन्ट्राइंडिकेट। एडहो हाइपरकालीमिया पर यहां सक्सिनाइल कोलिन ऑलरेडी दिया जा चुका है। ऑप्शन डी, फेंटनिल एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है जो इंडक्शन के साथ पेन कंट्रोल और सिडेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है, पर सक्सिनाइल कोलिन के आईसीपी रेजिंग इफेक्ट को डायरेक्टली मिटिगेट नहीं करता। क्वेश्चन 3, ड्यूरिंग एन इमरजेंट इंटुबेशन द फिजिशियन अटेम्प्ट्स विजुअलाइजेशन but encounters a grade 4 laryngoscopic view according to the Cormack-Lehan classification. The patient's oxygen saturation is rapidly declining. The nurse is skilled in advanced airway management. Which intervention should the nurse immediately prepare and assist with? A, insertion of a laryngeal mask airway LMA. B, repositioning the patient into a sniffing position. C, use of a bougie introducer to guide the endotracheal tube. D, preparation for a surgical cricothyroidotomy. Correct answer C. Explanation, कॉर्मैक-लेहेन ग्रेड 4 व्यू का मतलब है कि सिर्फ सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है और ग्लॉटिस बिल्कुल विजिबल नहीं है। इस सिनेरियो में पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन रैपिडली डिक्लाइन हो रही है, इंडिकेटिंग अ कैन नॉट इंटुबेट, कैन नॉट ऑक्सीजनेट सिचुएशन। अब बूजी एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्रोड्यूसर एक फ्लेक्सिबल स्टाइलेट लाइक डिवाइस है जो ब्लाइंड इंट्यूबेशन अटेम्प्ट को फैसिलिटेट करता है जब ग्लॉटिस विजिबल ना हो। इससे ट्रेकियल रिंग्स को पैल्पेट करके ईटीटी को गाइड किया जा सकता है। दिस इज अ क्रिटिकल नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फेल्ड डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी एंड बिफोर मूविंग टू मोर इन्वेजिव ऑप्शंस। ऑप्शन ए, LMA इंसर्शन एक ऑल्टरनेटिव एयरवे डिवाइस है, पर अगर बूजी से इंट्यूबेशन पॉसिबल हो तो डेफिनेटिव एयरवे सिक्योर करना प्रिफर्ड है। LMA एक टेम्पराइजिंग मेजर है। ऑप्शन बी, रीपोजिशनिंग यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले किया जाता है। अगर ग्रेड 4 व्यू ऑलरेडी है तो सिंपल रीपोजिशनिंग रेयरली इतना ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लाएगा। ऑप्शन डी, सर्जिकल क्राइकोथायरॉयडोटोमी एक लास्ट रिजॉर्ट इन्वेजिव प्रोसीजर है जब इंटुबेशन और LMA जैसे ऑप्शंस फेल हो जाते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजनेट नहीं किया जा पा रहा हो। कैन नॉट इंटुबेट, कैन नॉट वेंटिलेट सिनारियो। बूजी का यूज पहले ट्राई किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 4, आफ्टर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन द नर्स ऑस्कल्टेट्स bilateral breath sounds in the axilla, observes bilateral chest rise and the end-tidal CO2 waveform is consistently present. However, the patient's SpO2 remains 85% despite being on 100% oxygen and peak inspiratory pressures are high. Which potential complication should the nurse suspect? A, right main stem bronchus intubation. B, esophageal intubation. C, pneumothorax. D, severe bronchospasm. Correct answer D. Explanation, bilateral breath sounds, चेस्ट राइज और कंसिस्टेंट EtCO2 वेवफॉर्म कंफर्म करते हैं कि ETT ट्रेकिया में है
और बायलैटरल वेंटिलेशन हो रही है। लेकिन परसिस्टेंट लो SpO2 और हाई पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर्स के साथ जब ETT प्लेसमेंट करेक्ट है, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ब्रोंकोस्पाज्म के कारण स्मॉल एयरवेज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे वेंटिलेशन डिफिकल्ट होती है, एयर ट्रैपिंग होता है और ऑक्सीजनेशन इंपेयर हो जाती है, लीडिंग टू हाई PIP और हाइपोक्सीमिया। ऑप्शन ए, राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इंट्यूबेशन में ब्रेथ साउंड्स यूजुअली यूनिलैटरल होंगे, राइट साइड पर ज्यादा। ऑप्शन बी, इसोफेजियल इंट्यूबेशन में EtCO2 वेव फॉर्म एब्सेंट होगा और SpO2 रैपिडली ड्रॉप करेगी। ऑप्शन सी, न्यूमोथोरेक्स में ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट या डिमिनिश्ड होंगे अफेक्टेड साइड पर और यूजुअली चेस्ट एक्सरे पर कंफर्म होता है। हाई PIP भी हो सकती है, पर बाइलैटरल ब्रेथ साउंड्स इसको लेस लाइकली बनाते हैं एज द प्राइमरी कॉज हेयर। क्वेश्चन 5, a patient undergoing mechanical ventilation via an endotracheal tube suddenly develops acute respiratory distress, increasing peak airway pressures and decreased oxygen saturation. The nurse notes unilateral chest expansion and diminished breath sounds on the left side. The EtCO2 waveform is present but decreasing. What is the most likely immediate cause of this patient's deterioration? A, endotracheal tube obstruction. B, right main stem bronchus intubation. C, tension pneumothorax. B, extubation. करेक्ट आंसर बी। एक्सप्लेनेशन इस सिनेरियो में पेशेंट के सिम्टम्स एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इंक्रीजिंग पीक एयरवे प्रेशर्स, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यूनिलैटरल चेस्ट एक्सपेंशन, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स ऑन द लेफ्ट, राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इंट्यूबेशन को स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं। ETT का टिप बहुत आगे चला गया है और राइट मेन स्टेम ब्रोंकस में एंटर कर गया है, जिससे लेफ्ट लंग कोलैप्स हो रहा है या अंडर वेंटिलेटेड है। EtCO2 वेवफॉर्म प्रेजेंट है क्योंकि ETT अभी भी ट्रचिया में है, पर डिक्रीजिंग हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज्ड इफेक्टिव वेंटिलेशन। ऑप्शन ए, एंडोट्रैकियल ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन में बाइलेटरल ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट या डिमिनिश्ड होंगे और EtCO2 वेवफॉर्म फ्लैट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। ऑप्शन सी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में ट्रकियल डिविएशन, सीवियर हाइपोटेंशन और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स ऑन द अफेक्टेड साइड होंगे और एटको2 एब्सेंट या ड्रामेटिकली लो हो सकता है। ऑप्शन डी, एक्सट्यूबेशन में एटको2 वेवफॉर्म एब्सेंट होगा और ब्रेथ साउंड्स अपर एयरवे पर होंगे, चेस्ट पर नहीं। क्वेश्चन 6, a nurse is preparing for the intubation of a patient with severe facial trauma and bleeding that obscures direct visualization of the larynx. The physician plans for an awake fiber optic intubation. Which combination of medications should the nurse anticipate administering to optimize the procedure and patient safety? A, propofol and succinylcholine. B, midazolam and lidocaine. C, ketamine and rocuronium. D, etomidate and veturonium. Correct answer B. Explanation: awake fiber optic intubation, difficult airways, especially facial trauma और ब्लीडिंग जैसे सिचुएशंस में प्रीफर्ड मेथड है जहां डायरेक्ट विजुअलाइजेशन इम्पॉसिबल हो। इस प्रोसीजर के लिए पेशेंट को कोऑपरेटिव होना जरूरी है, इसलिए सिडेशन
जैसे मिडाजोलैम फॉर एंग्जाइटिस और कॉन्शियस सिडेशन, और टॉपिकल एनेस्थीसिया जैसे लाइडोकेन स्प्रे फॉर एयरवे यूज की जाती है। पैरालिटिक्स नहीं दिए जाते ताकि पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग मेंटेन करे और एयरवे रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट रहें। ऑप्शन ए, सी, डी प्रोपोफोल, सक्सिनाइल कोलिन, कैटामाइन, रॉक्यूरोनियम, एटोमिडेट, वैक्यूरोनियम में पैरालिटिक्स सक्सिनाइल कोलिन, रॉक्यूरोनियम, वैक्यूरोनियम शामिल है जो अवेक इंट्यूबेशन के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। इंड्यूसिंग फुल सिडेशन और पैरालिसिस इन ए डिफिकल्ट एयरवे इज डेंजरस and can lead to a cannot intubate, cannot ventilate situation. Question 7. A patient intubated for acute respiratory failure has been on mechanical ventilation for 72 hours. The nurse notes increasing secretions requiring frequent suctioning, a new fever of 38.5 degrees Celsius and new infiltrates on the chest X-ray. The white blood cell count is elevated. What priority action should the nurse take to address the most likely complication? A. Administer a scheduled bronchodilator to improve ventilation. B. Obtain sputum cultures and prepare to administer broad spectrum antibiotics. C. Increase the frequency of oral care and repositioning to prevent ventilator associated pneumonia. D. Prepare for re-intubation with a larger endotracheal tube to facilitate secretion removal. Correct answer B. Explanation: symptoms increasing secretions, frequent suctioning, fever, new infiltrates on chest X-ray, elevated WBC, ventilator associated pneumonia, VAP के क्लासिक साइंस हैं। VAP मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स में एक कॉमन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इस कंडीशन में ऑब्टेनिंग स्प्यूटम कल्चर्स टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स टू इनिशिएट टाइमली ट्रीटमेंट सबसे प्रायोरिटी एक्शन है। प्रॉम्प्ट एंटीबायोटिक थेरेपी मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करता है। ऑप्शन ए, ब्रोंकोडाइलेटर मे बी इंडिकेटेड इफ ब्रोंकोस्पैज्म इज प्रेजेंट, पर प्राइमरी कंसर्न यहां इंफेक्शन है। ऑप्शन सी, इंक्रीज ओरल केयर एंड रीपोजिशनिंग वीएपी प्रिवेंशन के इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, पर अगर वीएपी ऑलरेडी सस्पेक्ट किया जा रहा है तो ट्रीटमेंट पहले है। ऑप्शन डी, री-इंट्यूबेशन विद लार्जर ईटीटी अननेसेसरी है और प्रोसीजर के रिस्क बढ़ाएगा। एग्जिस्टिंग ईटीटी से सिक्रीशन रिमूवल टेक्निक्स फॉर एग्जांपल सक्शनिंग, चेस्ट फिजियोथेरेपी को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। क्वेश्चन 8, ड्यूरिंग एक्सट्यूबेशन अ पेशेंट सडनली डेवलप्स इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर, डिस्मिया एंड माइल्ड रिट्रैक्शंस। The nurse immediately suspects laryngeal edema. Which medication found on the crash chart should the nurse anticipate preparing for rapid administration? A. Furosemide, B. Epinephrine, racemic, C. Dexamethasone, D. Diphenhydramine. Correct answer B. Explanation: इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर एक्सट्यूबेशन के बाद अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का हॉलमार्क साइन है, ऑफन ड्यू टू लैरिंजियल एडिमा। इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में रेसिमिक एपिनेफ्रीन रैपिडली एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक है जो अपर एयरवे की म्यूकोसल वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करता है और एयरवे पेटेंसी को रिस्टोर करता है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है और इमरजेंसी में प्रिफर्ड है। ऑप्शन ए, फ्यूरोजेमाइड डायूरेटिक है
और इडिमा को स्लोली रिड्यूस करेगा, जो इमीडिएट स्ट्राइडर के लिए इफेक्टिव नहीं है। ऑप्शन सी, डेक्सामिथाजोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोवाइड करता है, पर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, घंटों लग सकते हैं और इमीडिएट स्ट्राइडर के लिए फर्स्ट लाइन नहीं है। ऑप्शन बी, डाइफिनहाइड्रामीन एंटी हिस्टामिन है, पर अपर एयरवे इडिमा को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करता। क्वेश्चन 9, a patient with a history of severe asthma is admitted with an acute exacerbation refractory to nebulized bronchodilators and systemic steroids. The patient is rapidly tiring with a rising PaCO2 and decreasing pH. The physician decides to intubate. Which type of paralytic agent is most appropriate to use for this patient during RSI? A. Succinylcholine, B. Rocuronium, C. Vecuronium, D. Cisatracurium. Correct answer B. Explanation, सीवियर आस्थमा एक्सासर्बेशन वाले पेशेंट्स में सक्सिनाइल कोलिन ऑन्ट्रा इंडिकेटेड या विथ कॉशन यूज करना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टामीन रिलीज कर सकता है जिससे ब्रोंकोस्पाज्म और बढ़ सकता है, इसलिए नॉन बिपोलराइजिंग पैरालिटिक्स प्रीफर्ड हैं। Among non-depolarizing paralytics, rocuronium is often preferred for RSI because of its rapid onset of action similar to succinylcholine, especially at higher doses, और intermediate duration of action जिससे intubation conditions quickly achieve होती है। ऑप्शन सी वैक्यूरोनियम और ऑप्शन डी सिजेट्राक्यूरियम भी non-depolarizing agents हैं, पर रोक्यूरोनियम का ऑनसेट ऑफ एक्शन जनरली फास्टर होता है, मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर RSI, especially when a rapid onset is crucial. Question 10. A patient has been successfully intubated and mechanically ventilated. The nurse is now focused on securing the endotracheal tube ETT. What is the most critical rationale for ensuring proper ETT securement in addition to preventing accidental extubation? A. To minimize oral discomfort and pressure ulcers. B. To facilitate effective suctioning of secretions. C. To prevent laryngeal and tracheal injury. D. To allow for easier repositioning of the patient. Correct answer C. Explanation, ETT securement सिर्फ एक्सीडेंटल एक्सटूबेशन प्रिवेंट करने के लिए ही नहीं, बल्कि लैरिंजियल और ट्रेकियल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए भी एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। इम्प्रॉपरली सिक्योर्ड या लूज ईटीटी ट्यूब के कंटिन्यूअस मूवमेंट और प्रेशर के कारण लैरिंजियल इडीमा, वोकल कॉर्ड डैमेज, ट्रेकियल इरोजन या ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है। सही सिक्योरमेंट ट्यूब के कांस्टेंट रबिंग और प्रेशर को मिनिमाइज करता है। ऑप्शन ए मिनिमाइज ओरल डिस्कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, पर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी जितना क्रिटिकल नहीं। ऑप्शन बी फैसिलिटेट सक्शनिंग इनडायरेक्ट बेनिफिट है, प्राइमरी रैशनल नहीं। ऑप्शन डी इजियर रीपोजिशनिंग अ सेकेंडरी बेनिफिट, प्राइमरी फोकस इंजरी प्रिवेंशन है। प्रॉपर सिक्योरमेंट पेशेंट रीपोजिशनिंग के दौरान ट्यूब डिस्प्लेसमेंट को भी प्रिवेंट करता है। वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नर्स विक्की को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एमसीक्यूज आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।